Welcome to Food Nutrition and Dietetics channel. So today we will start with part 2 of unit 5. So in this video we will cover Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana. Matritva means motherhood and Sahyog means support. The name of the scheme itself tells us the scheme aimed to support women in their motherhood. Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana is a conditional maternity benefit scheme of the Government of India launched in 2010 implemented by Ministry of Women and Child Development. सो इन दिस पैराग्राफ हमें ये समझाया जा रहा है कि मातृत्व सहयोग योजना का मीनिंग क्या है। सो मातृत्व का मतलब होता है मदरहुड, मतलब ममता, और सहयोग मतलब सपोर्ट, ताकि हम सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब इससे हमें पता लगता है कि हम इसके अंडर मदर्स को सपोर्ट करने वाले हैं। सो इसके अंडर दिए गए स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था ये 2010 में और इम्प्लीमेंट किया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस ने। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रीवियसली इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, इज a maternity benefit perform run by the government of India. In India, every third woman is undernourished. An undernourished mother almost invisibly gives birth to a low weight baby. When poor nutrition starts in the womb, it extends throughout the life cycle, particularly in women. So इस पैराग्राफ में हमें बताया जा रहा है कि मोस्ट ऑफ दी वुमेन्स इन इंडिया आर ये अंडर, मतलब उन्हें ठीक से उनकी न्यूट्रिएंट लेवल काफ़ी कम होती है और उन्हें डिफिशियंसी डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे होते हैं, और इसी कारण ये अगले जनरेशन में भी पास हो जाता है, क्योंकि जिसके कारण लो बर्थ ऑफ बेबी वगैरह आ जाता है, इसके कारण उन्हें काफ़ी चीज़ों से सफ़र करना पड़ता है और ये आगे भी पास होता जाता है। वी ऑल नो दैट due to the poverty, many women continue to work outside home during pregnancy and resume working soon after delivery. Due to the time and economic constraint, they cannot take good care of themselves and their newly born baby. IGSMY is a conditional cash transfer scheme. This means that a woman enroll under the scheme with the cash assistance upon completion of specific conditions. The total cash benefit amount is 4,000, which is provided to beneficiaries who enroll under the scheme in 3 installments subjected to fulfillment of subjected conditions. So हमें ये बताया जा रहा है कि काफ़ी वुमेन्स को प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें काम करना पड़ता है ताकि वो अपने बेसिक नीड्स को फुलफ़िल कर सके, और इसी कारण उन्हें काफ़ी सफ़र करना पड़ जाता है। और इसलिए गवर्नमेंट ने एक कैश स्कीम लॉन्च किया, जिसके अंदर कंडीशंस बताए गए, जिसके अंदर उन्हें कैश बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी 4,000 तक। सो इसके अंदर एलिजिबल होने के लिए कुछ क्राइटेरिया दिए गए, वो हम पढ़ेंगे। Cash incentive is envisaged to support health and nutritional need of pregnant and lactating women, and partly compensate the woman for the wage loss and she might incur while caring for herself and the child. It would also increase the demand of mother and child health services, providing incentives based on fulfillment of specific conditions related to health and nutrition of the mother child. तो इसके अंदर कुछ कंडीशंस लगाए गए जिससे और कोई उसका जिसे ज़रूरत नहीं है वो उसका बेनिफिट ना उठा सके, और ये स्कीम का बेनिफिट उन्हें ही मिले जिन्हें ज़रूरत है। तो इससे उनकी काफ़ी रिक्वायरमेंट वगैरह भी पूरी हो जाएगी और उनका न्यूट्रिशन लेवल भी इंक्रीज़ होगा और उन्हें सपोर्ट भी मिलेगा। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम to improve the health and nutritional status of pregnant and lactating women and their young infants. सो इस अंडर स्कीम के अंदर ये फोकस किया गया कि हमें न्यूट्रिशनल हेल्थ स्टेटस ऑफ प्रेग्नेंट और लैक्टेटिक वुमेंस को हमें इंक्रीज़ करना है और उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को स्टेटस को इंक्रीज़ करना है। सो उसके अंदर और दिया गया है कि प्रमोटिंग अप्रोप्रिएट प्रैक्टिसेस केयर utilization during pregnancy, safe delivery. Second is encouraging women to follow infant and young children feeding practice, including early and exclusive breastfeeding for 6 months. Third is contributing to better enabling environment by providing cash incentive for improved health and nutrition to pregnant and lactating mother. So इसके अंदर 4 मेजरली पॉइंट्स पर फोकस किया गया।
जिसमें पहले में हमें प्रमोट किया गया कि उन्हें केयर वगैरह प्रोवाइड किया गया, सर्विसेज दिए गई ताकि सेफ डिलीवरी और लैक्टेट अपने बेबी को फीड कर सके। सेकंड में हमने फोकस किया कि अ, हमें बेबी पर भी फोकस किया ताकि उसका हेल्थ बना रहे और उसे रेगुलरली चेकअप वगैरह दिया गया और उसे बाकी सब के बारे में बताया गया। थर्ड के अंदर हमने देखा कि अ, उन्हें कैश बेनिफिट भी प्रोवाइड किया गया जिससे वो फाइनेंशियली भी इनकरेज हो पाए। Next is beneficiaries. The beneficiary which come under this schemes are women in entitled to receive the benefit of scheme if she fulfills four criteria. First is pregnant woman. Second, not less than 19 years old. Third, this is her first or second live birth and she or her husband does not work in government public sector undertaken. So इस स्कीम के अंडर बेनिफिशरीज वगैरह तो हमने जान ली, लेकिन उसके अंडर ये 4 क्राइटेरिया उन्हें फॉलो करना ज़रूरी था, जिसमें पहला था कि वो प्रेग्नेंट होनी चाहिए, दूसरा वो 19 साल से छोटी नहीं होनी चाहिए, थर्ड वो उसका पहला या दूसरा लाइफ बर्थ हो, मतलब उसके दूसरा पहला या दूसरा चाइल्ड हो, और फोर्थ था कि उसका हस्बैंड वगैरह कोई गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर में काम ना कर रहा हो। अगर कोई वुमन ये फॉलो करती है, अगर ये चारों क्राइटेरिया उस फुलफ़िल कर देती है तो उसे इस स्कीम के अंडर लिया जाता है। Care during pregnancy and delivery. The focus on ICGMI is to improve nutritional and health status of pregnant and lactating women across the country by partly compensating for their wage loss and encouraging increased access to supplementary nutrition under ICDS scheme. So पहले पॉइंट में हमें बताया गया कि उन्हें केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और डिलीवरी में प्रोवाइड किया गया, उन्हें इम्प्रूव न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड किया गया, उसके रेगुलर हेल्थ चेकअप्स लिए गए और उन्हें से प्रॉपर सप्लीमेंट्री फीडिंग वगैरह प्रोवाइड किया गया। Next is early identification of registration of pregnancy. Early registration of pregnancy is essential for availing facilities offered by health services to assess the health and nutrition status of pregnant women. It also helps to screen the complications early in pregnancy. Early identification and registration of pregnancy is being promoted in Government of India primarily through National Rural Health Mission and जानकी सहयोग योजना. सो सेकंड हमने ये फोकस किया कि उन्हें अर्ली अगर हमने डिटेक्ट कर लिया तो उनका रजिस्टर करके पहले ही हम उनका वो सर्विसेज के लिए उनकी सीट्स रिज़र्व कर देते हैं और उनके बारे में फिर ट्रीटमेंट वगैरह के लिए उन्हें जो भी रिक्वायरमेंट है उसके उस पर वो फोकस करते हैं। थर्ड इज़ एंटीनेंटल केयर. ड्यूरिंग द ANC ऑफ द हेल्थ केयर वाइटल माइलस्टोन्स ऑफ प्रेगनेंसी आर नोटेड. Ideally, apart from ANC and registration, 3 ANCs are necessary for mandated under NRHM. Periodic antenatal checkup helps in early detection, management of complications, timely advice of appropriate referral. This can help in improve maternal and neonatal services. ANC is a key entry point for the pregnant woman to receive a broad range of health promotion and prevention health services, including nutrition support and prevention of treatment anemia and other infectious diseases associated with reproductive health. So antenatal care मतलब उन्हें रेगुलरली उनकी कंडीशन को नोट किया जाता था और उसके हिसाब से उन्हें ट्रीट किया जाता था और उसे ट्रीटमेंट दिया जाता था, और इससे उन्हें यह बेनिफिट मिलता था कि हम पहले ही कॉम्प्लिकेशंस वगैरह को डिटेक्ट कर सकते थे उसमें और उसके हिसाब से उनका ट्रीटमेंट कर सकते थे, जिसके कारण चाइल्ड डेथ के रेट्स काफ़ी कम हो सकते थे। सो इसके अंडर ये फोकस किया गया। Institutional delivery. One of the accepted strategies for reducing maternal mortality is to promote deliveries at health institutions by skilled personnel like doctors and nurses. The Janani Sahyog Yojana provides cash assistance for institutional delivery. The benefit under JSY are linked to pregnant women getting the delivery conducted in health centers, hospitals. Early initiated of breastfeeding and colostrum feeding by also be ensured. No cost transfer has been envisaged under ICGMIs at the time of delivery since it is covered under JSY. सो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, इसके अंडर ये भी फोकस किया गया कि उन्हें बराबर स्किल्ड और प्रोफेशनल डॉक्टर से ट्रीटमेंट दिया जाता था, ना कि किसी अनस्किल्ड डॉक्टर से, ताकि उनकी अच्छी से ट्रीटमेंट की जा सके और कुछ कॉम्प्लिकेशंस वगैरह ना हो। बीज इन्फेंट केयर.
अब इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे बच्चों का देखभाल करना चाहिए और उनके बारे में क्या क्या इन्होंने सोचा। इम्यूनाइजेशन ऑफ प्रेग्नेंट वुमन एंड इन्फेंट प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम 6 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस: poliomyelitis, diphtheria, protea, tetanus, tuberculosis and measles. These are the major preventable causes of child mortality, disabilities, morbidity and related malnutrition. सो इम्यूनाइजेशन मतलब कुछ नहीं, जब हम टीकाकरण जिसे बोलते हैं उसमें हम इंजेक्शन्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं जिससे उनकी वैक्सीन्स वगैरह दिया जाता है, जिससे उन्हें 6 मेजर डिजीजेस से सेव किया गया, जिसके अंडर था पोलियोमाइलिटिस, डिप्थीरिया, प्रूशिया एंड टेटानस, ट्यूबरक्लोसिस और मिजल्स। इन सब से उन्हें इम्यूनाइज़ किया जाता था और जिससे चाइल्ड मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट्स को कम किया जाता था। इम्यूनाइजेशन ऑफ प्रेग्नेंट वुमन अगेंस्ट टेटनस और रिड्यूस्ड मैटरनल एंड न्यूनेटल मॉर्टेलिटी, इससे रिड्यूस किया जाता था। दिस सर्विसेज इज डिलीवर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ आरएसएस। तो ये प्रोवाइड किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अंडर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर। Growth monitoring consists of routine weighing and watching development milestones to observe pattern of growth combined with preventive actions when derivation are detected. ग्रोथ मॉनिटरिंग मतलब ग्रोथ को मॉनिटर कर मतलब हम चेक करते हैं कि रेगुलर चेकअप किया जाता है कि कितना हाइट इंक्रीज हुआ और कितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है और वो अगर अनस्टंटेड और वेस्टेज से सफ़र तो नहीं कर रहा। अंडर द ICDS स्कीम, ग्रोथ मॉनिटरिंग ऑफ चिल्ड्रन इज़ वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़. Children under the 3 are weighed once a month and children 3 to 6 of the age are weighed quarterly. So जो 3 साल के अंदर होते थे उन्हें मंथली चेक, उनकी हाइट मंथली चेक की जाती थी और जो 3 से 6 साल के उम्र में थे उनकी वेट ईयरली ली जाती थी. Mothers and children production cards are provided to mothers to track the nutrition status, immunization schedule and development milestones for both the child and pregnant and lactating mothers. Though discussion of counseling growth monitoring also increases the participation and capabilities of families to understand the improved child care and feeding practices. So इसके अंदर उन्हें एक कार्ड का मदर्स को कार्ड भी प्रोवाइड किया जाता था जिसके अंदर वो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल वगैरह दिया जाता था और वो उसके हिसाब से जो रिक्वायरमेंट्स है वो सब पूरा कर सकते थे और उनके चाइल्ड का प्रॉपर डेवलपमेंट देख सकते थे. नेक्स्ट इज पोषण अभियान. इंडिया इज द होम ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ malnourished children in the world. One cannot build a strong building on a weak foundation. Similarly, if the children of the country are weak, the progress of the country will be slowed down. Today's children are the future of tomorrow, so it's important that they have access to nutritious food right from birth through adolescence. So पोषण अभियान में मेजरली फोकस इस पैराग्राफ में हमें बताया गया कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया आर माल नरिश्ड, मतलब उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है और काफ़ी बच्चे माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहे हैं और इसी से हम ओवरकम करने के लिए पोषण अभियान को लॉन्च किया. सो आगे हम पढ़ेंगे कि उसके अंडर क्या क्या आता है. पोषण अभियान वॉज लॉन्च्ड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑन 8 March 2018 इन Junjunu, Rajasthan. The focus of Abhiyan is to lay emphasis on nutritional status of adolescent girls, pregnant women, lactating mothers, and children from 0 to 6 years of age. The first 1,000 days of the children are the most crucial, which include 9 months of pregnancy. So पोषण अभियान लॉन्च किया गया था 8 March 2018 में हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा और ये मेजरली न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ एडोलसेंट गर्ल्स और प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर पर फोकस करके किया गया था. और इसके अंडर चिल्ड्रन आते थे जो कि 0 से 6 साल के बच्चे थे. इन चारों पर मेजरली फोकस किया जाता था और उन्हें 1000 डे और उन्हें इम्पोर्टेंस बताया जाता था. 6 months and exclusive breastfeeding and the period from 6 months to 2 years to ensure focusing intervention and addressing undernutrition. Besides increasing the birth weight, timely intervention with the help of reduced both infant mortality rate and maternal mortality rate, it is to ensure that malnutrition doesn't affect children cognition, development and or physical growth. So इसके अंदर ये भी देखा गया कि ऐसा नहीं है कि उन्हें खाली न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देना है और वो डेवलप हो रहे कि नहीं वो नहीं चेक करना. हमें ये भी देखना है कि उनकी डेवलपमेंट हो रही है क्या नहीं और दोनों तरह से देखा जाता है, मेंटली भी और फिजिकली भी. सो इसमें और दो मेजरली फोकस किया जाता है, दैट इज़ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करने के फोकस किया जाता है. द इनिशिएटिव सीक्स टू रिड्यूस द लेवल ऑफ स्टंटिंग अंडर न्यूट्रिशन एंड लो बर्थ वेट by 2% each and anemia by 3%. It aims on reducing stunting
फ्रॉम 38.4%। तो यही बताया गया है कि कितने परसेंट से वो इंक्रीज करना चाहते हैं और उनका एम क्या है। A key idea of initiative to incentivize Anganwadi workers for using ICT based tool, making it easier to implement the monitoring the program. सो की इनिशिएटिव लिया गया ताकि इस पर जल्दी से जल्दी फोकस किया जाए और एम्ड टारगेट को अचीव किया जाए। The objective of Poshan Abhiyan is to reduce the stunting in identified district of India with the highest malnutrition burden by improving utilization of key Anganwadi services and improving the quality of Anganwadi centered delivery. It aims to ensure holistic development and adequate nutrition of pregnant women, mothers and children. सो पोषण अभियान का ऑब्जेक्टिव था कि वो स्टंटिंग को रिड्यूस करना चाहते थे और बाकी माल न्यूट्रिशन को भी रिड्यूस करना चाहते थे। आंगनवाड़ी सर्विसेज को इम्प्रूव करना चाहते ताकि वो भी उसमें हेल्प कर सके। आंगनवाड़ी सर्विसेज को डिलीवरी क्वालिटी बढ़ाने के लिए इम्प्रूव किया जाता था और वुमेंस को भी सपोर्ट किया जाता था ताकि वो भी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो और हेल्प करें। The Ministry of Women and Child Development is implementing Poshan Abhiyan in 315 districts in first year, 235 districts in second year and remaining districts covered in third year. So वही बताया जा रहा है कि वो कहाँ कहाँ लॉन्च किया गया और कैसे उसे फैलाया गया। Goals and objectives: reduced, first is to reduce stunting in children from 0 to 6 year at 2% per annum. Second is reduce undernutrition in children at 2% per annum and third is reduce low birth वेट एट 2% पर आने। तो पहले वो फोकस किया कि उन्हें इनके गोल्स वगैरह अचीव किए और उन्होंने फोकस किया कि उनको स्टंटिंग को रिड्यूस करना है, अंडर न्यूट्रिशन को हटाना है, लो बर्थ वेट को हटाना है और अनीमिया के प्रिवेलेंस को कम करना है, रिड्यूस द प्रिवेलेंस ऑफ एनीमिया अगेंस्ट वुमेन, एडल्ट गर्ल्स, वही सब उनको रिड्यूस करना है। तो ये मेजरली उनके गोल्स थे। कंपोनेंट्स ऑफ पोषण अभियान: फर्स्ट इज कन्वर्जेंस। पोषण अभियान इंश्योर्स convergence with various programs, that is Anganwadi services, Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana scheme for adolescents. Goals of this ministry: Janani Sahyog Yojana, National Health Mission of MOH and FW, Swachh Bharat Ministry of India and Drinking Water Sanitation, Public Distribution System, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme and मिनिस्ट्री ऑफ रूरल। तो इसके अंडर काफ़ी स्कीम्स आए गए और बाकी स्कीम में भी इसे इन्वॉल्व किया गया ताकि वो भी उसके फैलने में मदद करे और इसे बढ़ावा दे। नेक्स्ट सेकंड इज टेक्नोलॉजी। द ICDS कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज वन ऑफ द मेन कंपोनेंट ऑफ पोषण अभियान। द मोबाइल एप्लीकेशन फैसिलिटेट द कैप्चर डाटा फ्रॉम फ्रंटलाइन फंक्शनरीज एंड a 6-tier dashboards ensures the monitoring and intervention mechanism. CAS plays 8.2 kgs per register with 173 grams of smartphones. It enables growth monitoring of children with the help of auto plotting growth charts and mobile application. So हमने इसमें टेक्नोलॉजी को भी इन्वॉल्व किया क्योंकि हम ऐसे काफ़ी टाइम लगता था पर टेक्नोलॉजी आजकल काफ़ी बढ़ रही है और उसे इससे फैलाना वो काफ़ी आसान पड़ जाता था। तो उन्होंने एप्लीकेशन वगैरह लॉन्च किए जिससे वो अपने घर में ही चेक कर सकते थे उनका जो भी हो, हाइट वगैरह, वेट नहीं, हाइट को चेक कर सकते थे, तो उनके न्यूट्रिशनल वैल्यू को चेक कर सकते और वो कंसल्ट भी कर सकते थे। इससे भी उसे पोषण अभियान को आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद हुई और टेक्नोलॉजी में ने भी काफ़ी सहयोग किया। थर्ड इज कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी एनहांसमेंट ऑफ ICDS फंक्शनरी इज अ पार्ट ऑफ पोषण अभियान, दैट इज incremental learning by doing approach. There are 21 thematic modules developed under ILA for training of state resource groups, district resource group, block address groups and AWL. And ELLA software has been developed as a comprehensive training and evaluation of web based learning portals for the staff based on in fields. So इसके अंदर काफ़ी सॉफ्टवेयर्स भी लॉन्च किया और वो ट्रेनिंग वगैरह, इवैल्यूएशन वगैरह में हेल्प करते थे और उन्होंने लर्निंग पोर्टल्स भी एक्टिवेट किए जिससे उन्हें ना कि खाली न्यूट्रिशनली भी सपोर्ट किया जाए बल्कि उनकी मेंटल स्किल्स भी इंक्रीज़ किया जाए। दिस विल कंट्रीब्यूट टू द सस्टेनेबिलिटी ऑफ ILA एंड एस्टैब्लिश सिस्टम दैट अलाउज फॉर इजी मेजरमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स थ्रू ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। और ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म्स को भी लॉन्च किया और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग और इन सब पर भी फोकस किया गया। नेक्स्ट इज कम्युनिटी मोबिलाइजेशन
and behavior changes is another important component of mission. The problem of malnutrition and intergenerational and is dependent on multiple factors, which includes inter alia, includes optimal infant and young child feeding practices, immunization, institutional delivery, early child development, food fortification, deworming, access to safe drinking water and proper sanitation. So इसके अंदर ये सब भी कवर किया गया, जैसे कि इम्यूनाइजेशन किया गया, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट किया गया, फूड फोर्टिफिकेशन वगैरह इन्वॉल्व किया गया. Therefore, to address the problem of stunting, underweight and wasting, especially in children, there is need to take up sustainable focus on converging the agenda of improving nutrition in the Jan Adola through through involvement of Panchayati Raj institution, volunteers and ensuring wide public participation. इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन को भी इम्प्रूव किया गया ताकि वो भी हेल्प करे और इस पोषण अभियान को आगे बढ़ाने में मदद करें. So that's all this unit 5 was. So from next video we will start from unit 6. Thanks for watching.